So today we are going to quickly revise animal tissue. So this would be a quick revision as we have already studied the chapter in detail. Now when we started discussing the chapter tissue, you all can recall that we divided into two major parts. We discussed that we would be studying tissue by dividing into two major categories, and that were animal and plant tissue. And you can also recall that why we divided plant and animal tissue into separate categories, because their mode of habitat is different, their bodies are different, their energy expenditures are different. So totally the organization of body is different. That's why we are dealing with these tissues separately, right? So we have already studied plant tissue. So today we are dealing with animal tissues. Now we are very well aware that the animal tissues can be divided into four basic categories, and the basis of division is the functions that the different tissues perform. And the four major basic tissues that are found in animal bodies are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epi का मतलब होता है upper, thelial मतलब layer. To the tissue that would form the upper layer is called as epithelial tissue. But upper layer किसकी? Of our body obviously, but body का मतलब तो हमें ऐसे ही समझ आता है कि body के बाहर वाली skin. Obviously skin is an example of epithelial tissue, but in addition to that हमारी body में और भी बहुत सारे organs हैं, तो उन organs की upper layer भी epithelial tissue ही बनाता है. After that connective tissue. Connective में जो term आ रही connect करने की, so the tissue that will connect whole of our body would be connective tissue. Then muscular tissue मतलब इसमें क्या टर्म आ रही है मसल. तो ये टिश्यू किससे बना होगा? मसल से बना होगा. तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में कितने कितने डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं. सो वी वुड बी स्टार्टिंग दैट अंडर दिस कैटेगरी. एंड देन नर्वस टिश्यू. नर्वस में टर्म क्या आ रही है? नर्व. तो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में हम इस टिश्यू के अंदर स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट, जिसमें हम बेसिक कैटेगरीज देख लेते हैं दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी. सी दीज आर द फोर बेसिक कैटेगरीज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम बहुत सारी कैटेगरीज स्टडी करने वाले हैं: स्क्वामस एपिथेलियम और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. Now, if you can recall, squamous epithelium is made up of flat cells, right? बिल्कुल flat cells होते हैं और जो एक membrane बना लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और इनका मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट? देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. जो स्ट्रैटा होता है ना, उसका मतलब होता है अलग अलग लेयर्स बना लेना. तो स्क्वामस एपिथेलियम तो है, लेकिन उसकी अलग अलग लेयर्स बन गई, सो दैट वुड बी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. देन वी विल स्टडी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. कॉल्यूमिनार में वर्ड क्या आ रहा है? कॉलम आ रहा है. सो कॉलम लाइक सेल्स वुड बी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. Then if you just concentrate on the next term, it's ciliated columnar epithelium. मतलब column like cells तो है, but उसके ऊपर cilia भी है. That's why it's ciliated columnar epithelium. Then the next is cuboidal epithelium. Cuboidal में word क्या आ रहा है? Cube आ रहा है. So the tissue which has cube-like cells is called as cuboidal epithelium. And the last is glandular. जिसमें glands बन जाएंगे, that kind of epithelium would be glandular epithelium. अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ब्लड है, बोन पढ़ेंगे, हम कार्टिलेज के बारे में स्टडी करेंगे. वी वुड स्टडी अबाउट टेंडन, लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन द coming slides. After that, if we talk about the muscular tissue, we have divided the muscular tissue of animals into three major categories that we are going to study in detail as well. Striated, or we call it as skeletal muscle as well, unstriated or smooth muscle, and the cardiac muscle which is found in heart. The last is nervous tissue, in which we will study about the structure and function of neuron, right? So let's start with the very first topic, that is epithelial tissue. So at this point, we are very clear. Epi means upper, thelial means layer. So the tissue which forms the upper layer of the organs or of the body is called as epithelial tissue.
तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस में कोई अपर लेयर डालते हो, उसे किसी भी चीज़ के लिए, वेदर इट इज़ मेंट फॉर एनीथिंग, सो अपर लेयर का मतलब क्या होता है? For protection, right? So whenever we pack our suitcases or whenever we pack our bags, what happens? We generally keep our towel spread over it, right? So it is also meant for something delicate packing and kind of meant for protection as well. So epithelial tissue, because it forms the outer covering, so it is also meant for protection. So it is a protective covering. और एक बात याद रखना, जब भी हमें किसी चीज़ की प्रोटेक्शन देनी है, वी ऑलवेज ट्राई दैट इट शुड बी ए कॉन्टिन्यूस शीट, हमेशा वो कॉन्टिन्यूस शीट होनी चाहिए। वेन एवर यू कवर योर नोटबुक्स, जब भी आप अपनी नोटबुक्स कवर करते हो, ऊपर लेमिनेट करने की कोशिश करते हो, उसको ट्रांसपेरेंट जो शीट होते हैं उससे कवर करने की कोशिश करते हो, राइट, ताकि उस पर अगर थोड़ी सी वाटर की ड्रॉपलेट स्प्रेड हो जाए तो आपका जो कवर है वो डैमेज नहीं हो। बट जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि अगर उस प्लास्टिक की शीट जो है जिसके हेल्प से आप लेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो ही डैमेज्ड हो तो क्या होगा? यू वोंट, आपका जो नोटबुक होगी दैट वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड. So that's why the thing that is meant to provide protection should always form a continuous sheet. So in the same case, because epithelial tissue is meant to provide a protective covering, so it also forms a continuous sheet. अगर हम बात करें कि ऐसा तो ही नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज दैट lie beneath the epithelial tissue. So the epithelial tissue is separated from the underlying tissue with the help of a membrane, and that membrane is called as basement membrane. मतलब क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू होगा, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, एंड देन उसके नीचे बाकी जो हमारी बॉडी के और टिश्यूज है, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मिलेंगे. ओके, नाउ if we talk about the different kind of epithelial tissue, there are various kinds, and those kinds depend on the shape and function. So firstly, we are taking up the squamous epithelium. Squamous epithelium, as we have already discussed, कि इसके flat cells होते हैं और thin cells होते हैं. And thin and flat cells form a delicate lining. एक बहुत delicate सी lining बना लेते हैं. और ये वाले cells हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे mainly substances का transportation होना होता है through a delicate lining. Now just think of various examples जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना है, एक्सचेंज होना है सब्सटेंसेस का. सबसे इम्पॉर्टेंट तो है लंग एल्यूविलाई. एल्यूविलाई हमारे लंग्स के वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है. कौन सी गैसेस का? ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, राइट. तो वहाँ पे हमें एक डेलिकेट लाइनिंग चाहिए ताकि इजीली एक्सचेंज भी हो जाए और साथ ही साथ कोई ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं हो. देन ईस्टोफेगस में भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. ईस्टोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप. ये तो है स्क्वामस एपिथेलियम की बात. लेकिन अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. लेकिन अब आपको पता है कि आपकी आउटर कवरिंग तो स्किन भी है, और आपको जब कभी चोट लग जाती है तो क्या ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि चोट लगी और उसके बाद क्या हुआ कि आपके नीचे से मसल्स दिखने लगी या बोन्स दिखने लगी. इट नेवर हैपेंस. अगर आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर कभी टेयर ऑफ हो भी जाती है तो नीचे से आपको स्किन के दूसरी लेयर दिखने लगती है और अल्टीमेटली वो वापस आपके जो नेचुरल स्किन का शेड होता है उसके साथ मैच भी कर जाती है, राइट. अगर बहुत ज़्यादा डीप कट लगा है तब जाके कहीं आपको नीचे की मसल्स दिखती हैं. अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत आपको चोट लगी है सो नीचे आपको एक और लेयर दिखती है. मतलब आपका जो एपिथेलियम है वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है. इसका मेन क्या काम है? टू प्रिवेंट द वेयर एंड टियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स दैट स्ट्राटा मींस लेयर. तो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एन एग्जांपल इज स्किन. मतलब बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. So this example is very very important and you should remember it, right? So we have discussed squamous epithelium over here. Now we are moving towards columnar epithelium. Columnar epithelium में जो टर्म छुपी हुई है, जो टर्म hidden है, that is column.
तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉलम लाइक सेल्स हैं। कॉलम का मतलब क्या हुआ, टॉल सेल्स है। तो टॉल सेल्स होंगे, तो टॉल सेल्स अगर हम जनरल सोचें तो टॉल सेल्स का मतलब कहीं भी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो कुछ लेने में बहुत जल्दी कुछ पकड़ना हो उसके लिए हमें हाइट बहुत काम आती है, राइट। तो यहाँ पे भी यही काम है, क्योंकि हमारे टॉल सेल्स हैं तो एब्जॉर्प्शन करना, अगर किसी चीज़ को लेना है अपने अंदर, या फिर सिक्रीशन करना, या फिर कुछ बाहर निकालना है, तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए कॉलमनार एपिथेलियम आर स्पेशलाइज्ड। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि हम लगातार इतनी सारी मील्स का हमारा इनटेक होता है। तो इतने सारे मील्स के इनटेक की वजह से एब्जॉर्प्शन तो चाहिए। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस इज कि जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है ना, उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ यू जस्ट रिकॉल, अगर आपको याद होगा तो सीलिया क्या करते हैं, सीलिया फैसिलिटेट द मूवमेंट, राइट। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इफ यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। एंड व्हाट डू सीलिया डू, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ और लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम। तो यहाँ पे भी अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, इजी मूवमेंट कराएंगे। एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की मूवमेंट आसानी से कराना, राइट। या फिर अगर हम करें, अगर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट को इजी करवाना, तो वो सब कौन कराते हैं, सीलिया कराते हैं। और अगर आउटर सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, वी कॉल देम एज सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मतलब कॉलमनार तो है, कॉलम लाइक सेल्स तो है, लेकिन सीलिया भी है, दैट्स व्हाई सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल में वर्ड क्या छुपा हुआ है, क्यूब छुपा हुआ है। तो फिर क्यूब शेप्ड सेल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आप सोचो क्यूब शेप्ड सेल्स को, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वी विल एट द डायग्राम ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत ही एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसका काम भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है। और ये मिलता कहाँ है, किडनी टिब्यूल्स में मिलता है। किडनी टिब्यूल्स क्या है, एक्चुअली हमारी जो किडनी है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे से यूनिट्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, NEPHRONS। सो आप 10th क्लास में नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी करोगे, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कुछ टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, और हर नेफ्रॉन ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है और यूरिन बनाता है। तो जो टिब्यूल्स कह रहे हैं वो एक्चुअली नेफ्रॉन का पार्ट है, और क्योंकि वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई किडनी टिब्यूल्स, राइट। After that, next is glandular epithelium. Glandular epithelium में टर्म क्या आ रही है, ग्लैंड आ रही है। अगर epithelial cells मॉडिफाई हो जाएंगे ग्लैंड्स बनाने के लिए, तो हम क्या बोल देंगे उसको, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इनवर्ट्स फोल्ड हो जाता है, और multicellular gland बना देता है. So in that case we say it's a glandular epithelium, right? Now let's just look at the diagrams. अब देखो squamous epithelium. एक तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे चारों फिगर्स दिख रही हैं, नीचे देखो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है चारों फिगर्स के नीचे. So that blue wala portion is basement membrane that we have studied. That basement membrane separates the epithelial tissue from underlying tissue. तो आपको चारों फिगर में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है. नाउ जस्ट लुक एट द स्क्वामस टिश्यू. स्क्वामस टिश्यू में आपको थिन सेल्स दिख रहे हैं और फ्लैट सेल्स हैं, एंड दे आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट. सो दिस इज स्क्वामस. नाउ जस्ट लुक एट द डी पार्ट, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. ये वाली फिगर देखो, वैसे ही सेल्स हैं, सिर्फ अगर इसके ऊपर ऐसे ही सिमिलर लेयर्स बना दी जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस.
तो अब आपको जब कभी चोट लग जाती है तो अगर ये ऊपर वाली एक लेयर डैमेज हो भी गई तो नीचे वाली जो लेयर्स है ना वो एक्सपोज हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि सीधा आपकी मसल्स एक्सपोज हो जाएंगी या आपकी बोन्स एक्सपोज हो जाएंगी। तो ये इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन लुक एट द कॉलमनार सेल्स। देखो कितने टॉल सेल्स दिख रहे हैं, कॉलम लाइक सेल्स दिख रहे हैं। सो दीज आर कॉलमनार। देन आपको ब्रैकेट में सिलिएटेड भी दिया हुआ है, मतलब इनके टॉप पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द क्यूबॉइडल। देखो कितना कॉम्पैक्ट सा अरेंजमेंट है, कितना स्टिफ अरेंजमेंट है। तो अब आपको इसको तो देखकर ही समझ आ रहा है कि कितना टाइट अरेंजमेंट है, कितना कंप्लीट और कितना नीट अरेंजमेंट है। तो ये क्या काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। Okay, you do not need to draw these diagrams in your notebook, but these are important for understanding the concepts. So here we are done with epithelial tissue, right? After that, let's move towards the next type of tissue, that is connective tissue. कनेक्टिव में जो टर्म छुपी है वो कौन सी छुपी है, कनेक्ट करने की। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल बॉडी, सो इट्स गोइंग टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स की बात करें तो इसके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं, उनमें स्पेसेस होती हैं, और जो सेल्स होते हैं ना दैट आर एम्बेडेड इन आर मैट्रिक्स, एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में एम्बेड होते हैं। जैसे आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सेल के स्ट्रक्चर में आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, राइट? और उस साइटोप्लाज्म में आपने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनालिज हैं वो एम्बेडेड हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनालिज प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म क्या था, एक बैकग्राउंड सब्सटेंस था। सो इन द सेम केस मैट्रिक्स भी एक बैकग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। तो वो मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट हैं। सबसे पहला है ब्लड। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो हमें पता है कि ब्लड कौन सी फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, मतलब उसका जो मैट्रिक्स है ना वो फ्लूइड फॉर्म में है। तो जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, मतलब उसका लिक्विड मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनका नेम है आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। what do RBCs do? They help to carry oxygen. They help in transportation of oxygen. What do WBCs do? They are the soldiers of our body. मतलब वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। इन एडिशन टू दैट प्लाज्मा में सेल्स तो प्रेजेंट ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं एंड हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं, राइट? सो यू शुड रिमेंबर दिस कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, ओके? तो आप इसको याद रखिएगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ब्लड के फंक्शंस की, तो ब्लड फ्लो करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी excreted out. Okay, so that was example of connective tissue. There are some other connective tissues as well present in our body, and the second is bone. बोन मतलब हमारा स्केलेटल सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, बॉडी को कनेक्ट करने का ही तो काम कर रहा है। तो बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है एंड इन एडिशन टू दैट हमारी मसल्स के साथ अटैच होती है। बिकॉज आई होप यू कैन रिकॉल कि जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं वी ऑलवेज से दैट मूवमेंट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो मसल अकेली तो मूवमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बोन्स प्रेजेंट है ना, जब बोन्स मूव होंगी तभी तो मूवमेंट होगी।
लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि मसल्स ने मूवमेंट करानी है, तो फिर एक यही ऑप्शन हो सकता है कि अगर मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है देन इट वुड बी ईजियर। तो बोन्स क्या करती है, मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं और बोन्स हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट भी करती हैं। अब अगर हम बोन्स के मैट्रिक्स की बात करें तो जो बोन्स का मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है। आपको पता है ना बोन्स कितनी हार्ड होती है, और बना किसका होता है, कैल्शियम एंड फोस्फोरस कंपाउंड का। I hope now you can deduce that why your parents always tell you to have milk or include milk in your diet, because milk से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम क्या करेगा, बोन के मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बोन का मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी तो अल्टीमेटली आप स्ट्रॉन्ग होंगे। That's why you are always suggested to include milk in your diet, okay? So we are done with bones over here. Now let's move towards the next, some other kinds of connective tissues, and the first is ligament. So what does ligament do? Ligament क्या करता है, bones को bone से connect करता है, right? इसके बाद अगर हम कहें कि bones को bone से connect करता है, तो जहाँ पे बोन्स और एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे मूवमेंट भी तो होती है ना। हम कहते हैं ना कि हम इसलिए तो मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि जॉइंट्स हैं, राइट? वहाँ पे एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी तो बहुत ज़रूरत है। इसलिए लिगामेंट जो है बहुत इलास्टिक टिश्यू है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है। अभी हमने बात की थी दैट मसल्स को बोन से अटैच होना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि उसके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो टेंडेंस क्या करते हैं, टेंडेंस कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स। ये फाइब्रस टिश्यू है, फाइबर्स का बना है और इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। हम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अलाउ कर दी तो क्या होगा, बोन्स उतनी ज़्यादा मसल्स के साथ अटैच नहीं रह पाएंगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज आप देखो, अपनी नोज के टिप को टच करके देखो, बहुत इजीली बेंड हो सकता है, राइट? नोज के टिप पे कोई हड्डी प्रेजेंट नहीं है। टच योर ईयर, ईयर का जो बाहर वाला पोर्शन है उसको फोल्ड करके देखो, कितनी इजीली मूव हो जाता है, राइट? फोल्ड हो जाता है, तो मतलब कितना सॉफ्ट पार्ट है। तो क्या है यहाँ सब, इन सब चीज़ों में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, नोज में, एयर में, ट्रैकिया एंड इन लारिंक्स। सॉलिड मैट्रिक्स है लेकिन ये मैट्रिक्स किसका बना होता है, प्रोटीन्स का और शुगर्स का। कितनी इजीली बेंड हो जाता है और इसका क्या काम होता है, जो जॉइंट्स में बोन सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको स्मूथ कर देता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी स्किन और मसल्स के बीच में। ब्लड वेसल्स के आसपास भी प्रेजेंट होता है, नर्व्स में भी, नर्व्स के आसपास भी प्रेजेंट होता है और बोन मैरो में भी प्रेजेंट होता है। The main line that you need to remember over here is that it fills the space inside the organs। क्योंकि आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है that name the connective tissue that fills the space inside the organs, and you should remember it and you should be able to answer it that it's areolar connective tissue। In addition to that, ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है और टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है। After that, it's adipose connective tissue। adipose connective tissue है फैट स्टोरेज वाला टिश्यू। ये फैट को स्टोर करके रखता है, तो कहाँ मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेगा और स्किन के नीचे मिलता है। जो एडिपोज टिश्यू के सेल्स है ना, इसमें बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें फैट एक्यूमुलेट हो सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि सेल्स इसके फिल्ड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से। मतलब इसमें फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, मतलब ग्लोब्यूल होता है राउंड स्ट्रक्चर, तो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में फैट फिल हो जाता है और फैट इंसुलेटर का काम भी करता है। इंसुलेटर का मतलब हीट को लॉस नहीं होने देता, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। अगर फैट बहुत ही ज़्यादा कम हो, बिल्कुल ही कम हो फैट, और अगर कहीं चोट लगे तो बोन्स पे असर पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर एक नॉर्मल अमाउंट में हो तो फैट उस शॉक को इतनी जल्दी बोन्स तक नहीं पहुंचने देता, राइट? सो दैट वाज अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द डायग्राम्स। सबसे पहले आप देखो, आपको दिख रहा है फाइबर्स दिख रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर्स दिख रहे हैं।
मैक्रोफेजेस दिख रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, राइट। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू का कुछ डायग्राम है ना। तो अब आपको देखो, दो यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, बट आप यहाँ पे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो हमारे कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। कोलेजन फाइबर क्या काम करता है, हमारी जो स्किन है ना उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। आपको, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जो हमारी टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि स्किन को बाउंसी बनाने के लिए, स्किन को यूथफुल बनाने के लिए आप ये क्रीम ले लो, आप ये मॉइस्चराइज़र ले लो, तो उसमें कहते हैं कि इसमें कोलेजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए कोलेजन फाइबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और सेल्स दिखाए हुए मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। मास्ट सेल्स एलर्जी में हेल्प करते हैं, जब भी कोई एलर्जी हो जाती है वहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। और फिर क्या है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या काम करते हैं, आपको अभी सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी कितनी ज़्यादा कोविड-19 में यूज़ हो रही है। तो ये हमारे जो सेल्स हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। After that, just look at the next type of cells that are adipocyte, मतलब फैट सेल्स। देखो एक बड़ा सा सेल है, न्यूक्लियस जो है ना ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। साइड पे शिफ्ट हो गया और बीच में कितना बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट है, मतलब यहाँ पे फैट स्टोर होगा जिसको हम कह रहे थे फैट ग्लोब्यूल्स, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन यहाँ पे आपको बोन्स का दिया हुआ है, कार्टिलेज का डायग्राम दिया हुआ है और ब्लड कॉर्पसेल्स दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, कार्टिलेज का सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। क्योंकि आपसे यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल गिवन टू कार्टिलेज, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ बोन्स, दैट इज ऑस्टियोसाइट। यहाँ पे आपको दोनों नाम दिए हुए हैं, ऑस्टियोसाइट इज द सेल ऑफ बोन एंड कॉन्ड्रोसाइट इज द सेल ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे आपको एक और भी नाम दिया है, हाइलिन मैट्रिक्स। हाइलिन का मतलब होता है ग्लास लाइक, क्लियर। तो जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो हाइलिन मैट्रिक्स होता है। उसके बाद अगर हम ब्लड की बात करें तो आपको डिफरेंट ब्लड कॉर्पसेल्स दिखाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स दिखाए हैं। न्यूट्रोफिल दिखाया है, ईसिनोफिल दिखाया है, बेसोफिल दिखाया है। इनमें देखो, आपको अगर आप ध्यान दोगे इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है ना, इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलर वाइट ब्लड सेल्स। और अगर हम बाकी तीन देखें, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड प्लेटलेट्स, इसमें आपको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे, तो इनको ए ग्रैन्युलर बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ये नेम्स ही याद रख लो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड कॉर्पसेल्स है, दैट्स सफिशिएंट एट द लेवल ऑफ क्लास 9th। उसके बाद अगर हम बोन का स्ट्रक्चर देखें तो आप बोन के स्ट्रक्चर में देखोगे कुछ अंदर कैनाल्स दिए हुए हैं जिनको हम कहते हैं हवर्शन कैनाल्स। हवर्शन कैनाल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंटर में क्या प्रेजेंट है, कैनालिक्यूलाई या फिर कैनालिक्यूलर्स। कैनालिक्यूलर्स का क्या काम होता है, इसमें ऑस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हेयर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, द नेम ऑफ सेल्स ऑफ बोन एंड द name of different type of white blood cells, right? After that we are moving towards muscular tissue। हमें पता है मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। तीन टाइप्स के हैं, striated, smooth and cardiac। Now let's just look at the diagram and it would be clear। striated का मतलब क्या है, striations present है, मतलब डार्क और वाइट बैंड दिखते हैं, अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, दैट्स वाई striated मसल। बोन्स के साथ अटैच होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसलिए इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल शेप है। इफ वी लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ मसल, दैट इज स्मूथ मसल। स्मूथ का मतलब है इनमें स्ट्राइशंस नहीं दिखती, इसलिए इन्हें अनस्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। इनकी शेप की तरफ ध्यान से देखो, दोनों तरफ से पॉइंटेड है। इस टाइप की शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन।
ये मसल्स ऐसी हैं कि हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनवॉलंटरी मसल्स। अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते तो कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में, ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। जो मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ मसल। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट कार्डियक मसल। दोनों की फीचर्स हैं, मतलब कौन कौन से फीचर्स हैं? स्ट्राइटेड मसल का फीचर है कि इसमें स्ट्राइशंस दिखती हैं। स्मूथ मसल का फीचर है कि ये इनवॉलंटरी है। तो दोनों के फीचर्स इसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कार्डियक मसल है ना, जब से पैदा होते हैं तब से काम कर रही होते हैं। पैदा भी क्या होता है, जब से एक एम्ब्रियो स्टेज में एक बेबी होता है तब से हार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है, तब से बीट कर रही होती है टिल द वेरी लास्ट डे। कभी भी थकती नहीं। अगर हम अपनी नॉर्मल मसल्स की बात करें, उनमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज के बाद हमें पेन होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से। कार्डियक मसल तो कभी नहीं थकती। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है कार्डियक मसल्स की, राइट? सो दिस वाज अबाउट द डायग्राम्स। और यहाँ पे थोड़ी सी समरी दी हुई है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स की। डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं और वॉलंटरी मसल्स हैं। अगर हम अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स की बात करें, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, कोई स्ट्राइशंस नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगी, आइरिस में मिलेंगी, यूटेरस में मिलेंगी। कार्डियक मसल्स को क्या बोलते हैं? हार्ट मसल्स बोलते हैं। सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है एंड यूनिन्यूक्लिएट है। साथ ही साथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इनवॉलंटरी है। देन नर्वस टिश्यू क्या काम करता है? स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कोड की बात करें, नर्व्स की बात करें, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। अगर हम इनके बेसिक फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, स्ट्रक्चर भी बनाएगा, और फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट भी है, फंक्शन भी करेगा। नर्व जो मैसेज जाता है ना एक न्यूरॉन में, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की वजह से हम अपनी मसल्स मूव कर सकते हैं और स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फटाफट से न्यूरॉन का डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो न्यूरॉन का डायग्राम। डेंड्राइट से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं। देन द मैसेज कम्स टू साइटोन या सेल बॉडी। ये जो आपको येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज साइटोन और सेल बॉडी, राइट? सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो मैसेज डेंड्राइट से आया, साइटोन में गया। उसके बाद जो अंदर आपको ये छोटा सा येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन से मैसेज ट्रैवल करेगा और नर्व एंडिंग्स पे आ जाएगा। क्या होता है, इसके बाद ही एक और न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो उसकी डेंड्राइट्स क्या करेंगी, इसके नर्व एंडिंग से मैसेज ले लेंगी और ऐसे आगे मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ले आएंगे, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक ले आएंगे। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो आपकी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने मैसेज लिया, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दिया, वो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स तक मैसेज गया, ब्रेन तक गया या स्पाइनल कॉर्ड तक गया। स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि मसल्स को कहो पीछे हट जाए, मसल्स को कहो मूव कर जाए ताकि हाथ पीछे हट जाए। तो न्यूरॉन्स भागे भागे गए मैसेज लेकर, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा मसल्स को मूव करो। न्यूरॉन्स वापस आए मैसेज लेकर कि मसल्स तुम मूव करो। मसल ने मूव किया और हमारा हाथ फटाफट पीछे हट गया। अब ये सोचो कितनी जल्दी काम हो रहा है कि आपने किसी चीज को टच किया और एकदम से हाथ हटा लिया, राइट? तो इतना फास्ट जो काम है वो कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन्स में जो मैसेज जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। सो आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ nervous tissue, right? So here we are done with the discussion of animal tissue.